Good morning, students. I hope you are well at your home. Today, we will continue our chapter number first of history, the rise of nationalism in Europe. In this chapter, our today's topic is the revolutionaries. Revolutionaries means है क्रांतिकारी कि जो रिवॉल्यूशन हुई उस रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशन करने वाले लोगों को मेंबर्स को जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिवॉल्यूशनरीज कहा जाता है। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड कि उसको दबाने के डर से, रिप्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा उसको दबा देना, तो रिप्रेशन के डर से मैनी लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो अंडरग्राउंड हो गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन revolutionaries and spread their ideas. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. तो यहाँ revolutionaries का मतलब था कि उस समय monarchical forms के प्रति अपोज करना, कमिटमेंट के लिए अपोज करने के लिए कमिटमेंट करना और उसके बाद फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए फ्रीडम और लिबर्टी के लिए युद्ध में शामिल हो, मूवमेंट में शामिल हो। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Geneva in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. तो लिगुरिया में एक रिवॉल्यूशन अटेंड करने के लिए उसे 24 ईयर की एज में ही एग्जाइल का मतलब है उसे देश निकाला दे दिया, वहाँ से बाहर भेज दिया। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़, तो उसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बना ली। फर्स्ट यंग इटली इन मार्सिलीज एंड देन यंग यूरोप इन बेर्ने, where whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German states. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. So, Italy could not continue to be a पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स कि इटली लगातार छोटे राजाओं के अंडर में नहीं रह सकता। It had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of nation. और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सभी छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर के यूनिफिकेशन करना होगा। This unification alone could be basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany. उसके मॉडल को फॉलो करते हुए और भी सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में बनने लगी, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। मैजिनीज relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. तो उसको जूसेपे मैत्सिनी को मेटरनिक ने एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, उसका सबसे बड़ा शत्रु बनाते हुए उसे बताया गया। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830s to 1848, as conservatives tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution.
In many regions of Europe and as the Indian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educational middle class life, among whom were professors, school teachers, clerks and members of the commercial middle classes. तो सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुई वो एजुकेशनलिस्ट मीन्स जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने शुरुआत की और उसमें भी एजुकेशनलिस्ट मिडिल क्लास एलिट अमंग वे होम वर प्रोफेसर्स, जो प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क्स थे और मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास थे. द फर्स्ट अपहील took place in France in July 1830. The Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815 के बाद जब वो बर्बन किंग था, वो पावर में उसने वापस अपनी पावर रिस्टोर की, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवोल्यूशनरीज. उसे ओवरथ्रोन का मतलब अपनी गद्दी से उतार दिया गया, रिवोल्यूशनरीज ने उसे हटा दिया. Who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. When France sneezed, Metternich once remarked, the rest of Europe catch cold. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe sparked of a struggle for independence amongst the Greeks, which began in 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. पोइट्स एंड आर्टिस्ट, तो पहले एजुकेशनलिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, अब धीरे धीरे इस रिवॉल्यूशन में पोइट्स एंड आर्टिस्ट लेट्स ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इन स्ट्रगल अगेंस्ट ए मुस्लिम एम्पायर. एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट स्ट्रगल करने के लिए पोइट्स और उन्होंने भी यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन को शो करने के लिए जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपना रोल, पोइट्स और आर्टिस्ट्स ने भी रोल प्ले किया. द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बेरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर. पहले उसने फंड ऑर्गेनाइज किया और फिर वॉर में शामिल हुआ. वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. फाइनली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. तो जो ट्रीटी हुई कस्तूनतुनिया की जो ट्रीटी थी वो ट्रीटी 1832 में हुई, जो यूनान के साथ, ग्रीस को यूनान कहा जाता था, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की उसने मान्यता दी.